Good morning. Good Good morning, morning ma'am. to all of you. हाँ. Good So we morning, were ma'am. we Morning, were ma'am. हाँ. Good morning to all of you. All of you. Good morning. Good morning, ma'am. Harsh Chandra is there. Harsh Chandra is there. Yes, ma'am. Ha. Okay, very good. So social and religious causes. Have we discussed yesterday about the social and religious causes? Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. Many of the people, they were getting change into Christianity, convert themselves into Christianity, and the English educations were there. Racial discrimination was followed by them. Ma'am, Western As- culture. Western culture, and many social reforms were also done by the Britishers, which Ma'am, was not racial liked by the discrimination. हाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था सोशल रिफॉर्म्स जो उन्होंने किए वो भी कई इंडियंस के द्वारा पसंद नहीं किए गए थे सो एंड व्हाट अबाउट द मिलिट्री कॉजेस कैन यू डिस्कस अबाउट द मिलिट्री कॉजेस व्हाट आई सेड अबाउट द मिलिट्री कॉजेस And there Yes, was ma'am. discrimination between Indian and British soldiers. हाँ Ma'am, Indian soldiers Indian were soldiers paid were as paid less as very subedars, and less. European soldiers were paid very much high. yes And the Act of 1857 made it compulsory for new Indian recruit to serve overseas. okay and we have also seen that how the subedar he was used to get the salary of those of which the recruit used to get in the British East India Company जो रिक्रूट्स को मिलते थे वो सैलरी हमारे जो सूबेदार होते थे उनको मिला करते थे है ना Yes. हाँ so this was the reason of the discontentment among the militaries and the sipais now one question is there which is comes very important that what was the immediate cause of the revolt of 1857 ये हमें क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि what was the immediate cause of the revolt isn't it although it's also the part of the causes of revolt but I don't know this a very simple thing but please pay attention the immediate cause of the revolt is very much asked isn't it please look at it immediate cause of the revolt the cartridge of the new Enfield rifle had greased paper cover which had to be bitten off before the cartridge was loaded into the rifle. And it was said that the grease composed of beef and pig fat. Both the Hindus and Muslims refused to use them as the cow is sacred for the Hindus and the pig is also detestable to the Muslims. So what happened? ये दोनों ही की धार्मिक भावनाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात था हिंदुओं के और मुसलमानों के ये था क्या क्यों हुआ इमीडिएट कॉज कैन यू सी ये जो एक कार्टिगस हैव यू सीन दैट कार्टिगस ऑफ द गन बंदूक के ऊपर वाली हाँ जो हाँ Yes, ma'am. बंदूक के ऊपर जो कार्टिगस लगाया जाता है ना तो उसपे ऐसा चीज होता है जिसको मुंह से ऐसे हटा करके लगाया जाता है और उसमें जो ग्रीस पेपर जो दिया हुआ था कवर था वो पूरी तरह से किससे बना हुआ था जो राइफल में लोड करने से पहले उसको हटाना पड़ता था एंड इट वाज सेड दैट दैट ग्रीस कंपोज्ड ऑफ Beef. ऑफ pig fat beef of pig fat isn't it and both the Hindus and Muslims refused to use them क्यों एक तो as the cow sacred था हिंदुओं के लिए है ना और Yes, ma'am. pig जो था वो मुसलमानों के लिए they don't like they were disliking the pigs तो ये दोनों ही रूप में हम सिपाहियों के लिए और सोल्जर्स के लिए बहुत बड़ा धार्मिक आघात था उनके ऊपर तो अब देखो कैसे हुआ ये चीजों को डिस्कस करने के बाद में इमीडिएट कॉज को डिस्कस करने के बाद में आप लिखोगे on 11th March 29 1857 at बैरकपुर कहाँ है कोलकाता में है कहाँ पे है Kolkata. नियर कोलकाता हाँ मंगल पांडे a young Indian sepoy
मंगल पांडे जो थे वो एक यंग इंडियन सिपाही थे फ्रॉम बंगाल रेजिमेंट. किस रेजिमेंट में थे ये? Bengal Regiment. बंगाल रेजिमेंट थे. And he refused to use the grease cartridge and shot down his what sergeant. Shoot down his sergeant. इनके जो sergeant थे जो ऑर्डर करते थे उनको ही इन्होंने शूट कर दिया मंगल पांडे ने. ठीक है. और उन्होंने इनकार किया और शूट कर दिया उनको, अपने सर्जन को. एंड देन ही वाज अरेस्टेड एंड ट्राइड एंड आल्सो एक्सक्यूटेड व्हेन दिस न्यूज़ स्प्रेड. मेनी सिपाही स्टार्टेड द रिवॉल्ट. जैसे ही यह न्यूज़ कि उनको पकड़ लिया गया तो कई सिपाही जो थे उन्होंने भी रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, क्योंकि मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था. तो ये एक इमीडिएट कॉज था रिवॉल्ट का. दिस वाज द इमीडिएट कॉज. ठीक है. तो करीबन हमारा इमीडिएट कॉज इज द फर्स्ट व्हाई द सिपाही रिवॉल्टेड. देन मिलिट्री कॉज इज डिफरेंट, बट इमीडिएट जो कॉज था वो यही था. मिलिट्री कॉज तो था ही, मगर वो अचानक से नहीं था. ये तो कई दिनों से चला आ रहा था कि सैलरी इश्यूज है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. मगर मंगल पांडे जी ने जो कार्रवाई किया था वो इमीडिएट कॉज था, जो उन्होंने कार्टिगेज को रिफ्यूज कर दिया, अपने सर्जेंट के बात को रिफ्यूज किया और साथ ही साथ उनको शूट भी कर दिया. मैम एमएडी में भी है, एमएडी के बुक में. एमएडी मींस ओ मोरल एजुकेशन. यस मैम, 5th क्लास में. ओके. हाँ, एमएडीज के बुक में भी होंगे. ओके. ना आता है आपका कोड्स ऑफ रिवॉल्ट. कोड्स ऑफ रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है पहले आप समझ जाएंगे. कोड्स ऑफ रिवॉल्ट मतलब ये होता है कि ये रिवॉल्ट कहां कहां पे हुआ. ठीक है. और कैसे कैसे परिस्थिति में हुआ. इसका कोड्स ऑफ रिवॉल्ट को भी आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन राइट इट इन वन पैराग्राफ आल्सो. लेट्स सी. Before that, can we see one thing? The main centers of revolt. वो अभी आएगा. कहाँ कहाँ हुआ था वही मेन सेंटर्स हो गए. कहाँ कहाँ पे हुआ था. तो पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, then we'll go for the map work. Listen. So first we'll talk. The Sipahi broke out into an open revolt at Meerut in April 1857. सिपाहियों ने कहाँ पर युद्ध शुरू किया था? मेरठ कंटोनमेंट. Where is Meerut? Where is Meerut? UP. So in April 1857 in Meerut cantonment, the Sipahi revolted and they refused to touch the grease cartridge. वहां पर भी उन्होंने भी, क्योंकि ये तो अब लोगों को पता नहीं था, तो मंगल पांडे ने जब इस तरह का कार्रवाई किया तो बहुत सारे लोगों में आग की तरह ये बात फैल गई कि वो जो कार्टिगेज है वो पिग और काऊ के फैट से बना हुआ है. Isn't it? So they also revolted in the Meerut and they were court-martialed and sentenced to 10 years imprisoned. You know what is court-martial? Court-martial किसको कहते हैं? कोर्ट-मार्शल होता है कि थोड़े समय के लिए उनको जो है अपने जॉब से निर्खास्त कर दिया जाता है, वो बर्खास्त कर दिया जाता है और उनको सजा दी जाती है. ये कोर्ट-मार्शल होता है और इसमें उनको 10 साल का जेल दिया गया सैनिकों को. ठीक है. The regiment in Meerut revolted on May 10th, 1857. और ये पूरी तरह से and they opened the prison and released the imprisoned soldiers. अब वहां पर जो पूरी मेरठ रेजिमेंट थी वहां पर पूरा विद्रोह कर दिया और उन्होंने जेल तोड़ करके अपने सैनिकों को बाहर निकाला, सोल्जर्स को. एंड और वहां से वे बाहर निकाल करके दे मार्च टुवर्ड्स द दिल्ली ऑन May 11. 11 मई को वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए एंड रिबेल्ड अंडर द बहादुर शाह जफर II. Yes, it was very true that Bahadur Shah Jafar was only simply in the name of puppet and he was unable Mughal emperor. But in the name of Bahadur Shah Jafar, that there is a Mughal emperor in Delhi, so they revolted in the name of Bahadur Shah Jafar II. ठीक है. विद्रोह वहां पर किया उन्होंने दिल्ली में आके. और ये the revolt then spread to other places also and it was led by. अब धीरे धीरे सारी जगह में ये रिवॉल्ट फैलने लगे. जिन लोगों को, जो लोग रुष्ट थे, जो who were annoyed by the British, they started revolting. Among them few rulers were there
you can underline it, Nana Sahab in Kanpur. Now you will have to mark it. Nana Sahab was belonged to Kanpur along with his general, isn't it? He revolted there. And Tatya Tope and Begum Hazrat Mahal in Awadh. Tatya Tope कहाँ से थे? मैम ग्वालियर। Gwalior. ग्वालियर। Gwalior. ठीक है। अब बेगम हजरत फ्रॉम बेगम मैम हजरत अवध। महल कहाँ? Awadh. Awadh. रानी ओके, रानी लक्ष्मीबाई मैम झांसी। Jhansi. led the revolt in central India and fought it valiantly. You know, some areas, Meerut, Jhansi, Kanpur, if you see in the map, no, they are very near to each other. ये एकदम सेंट्रल दिल्ली में ही आप देखेंगे कि आप अगर मैप पॉइंटिंग करेंगे तो आपको उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि झांसी, कानपुर, अवध, दिल्ली, है ना, ग्वालियर बहुत आस पास में है, तो थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा। आई शो मैम यू लेकिन द फिर मैप। भी सब अलग अलग लड़ा। हाँ, अलग अलग तो लड़ेंगे, अलग अलग लड़े थे, अपने 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 टेरिटरीज के लिए लड़े थे। द रिवॉल्ट ऑल्सो स्प्रेड टू द बरेली, आगरा, बनारस एंड अदर प्लेसेस। द सिख लीडर इन पंजाब, निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया ऑफ ग्वालियर डिड नॉट ज्वाइन द रिवॉल्ट। अब देखेंगे इसमें अंडरलाइन करेंगे कौन कौन ने रिवॉल्ट किया। बरेली, आगरा, बनारस, isn't it? हाँ, और जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए वो थे सिख लीडर्स इन पंजाब, निजाम ऑफ हैदराबाद और सिंधिया। हाँ, और सिंधिया के, ग्वालियर के सिंधिया, ये लोग रिवॉल्ट में शामिल नहीं हुए थे। द मद्रास एंड द बॉम्बे रेजिमेंट also did not join the revolt. Which one? Madras and Bombay. You know, इसका रीजन ये भी था ना कि बॉम्बे और मद्रास में मुख्य रूप से ब्रिटिश का बहुत अच्छा पोर्ट था और बहुत अच्छा उनका वहां पर पकड़ थी। Very nice discipline they, yeah, they kept there. So maybe for that reason also the people did not revolted in Madras or Bombay regiment also, isn't it? And did not join the revolt. The Afghans and the Gurkhas remained loyal to the British. And that time, you know, Gurkhas, you know, those Assamese, Guwahati peoples. Have you heard about the Gurkhas? No, ma'am. गुरखा रेजिमेंट है ना हमारे यहाँ पर अभी भी मिलिटेंट्स में। गुरखा रेजिमेंट इज देयर, असम, गुवाहाटी, त्रिपुरा, मणिपुर। हमारे रेजिमेंट्स तो हमारे ब्रिटिश ने ही बांट के चले गए बेटे। बिहार रेजिमेंट है हमारा, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, देखा होगा आपने, नाम सुना होगा। इट्स अ बिहार रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, बंगाल रेजिमेंट सेंटर, उड़ीसा रेजिमेंट सेंटर। First of all, few years before it was all sub area Bihar, Bengal and Bhubaneswar region. All together it was known as sub area Bihar, Bengal and Odisha region. उड़ीसा, ये सब एक साथ आता है। अभी भी आप अगर बिहार के डोमिसाइल हैं तो यू कैन टेक एडमिशन वेरी इजीली इन भुवनेश्वर एंड उड़ीसा, ठीक है। तो और बंगाल का भी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ऑल टुगेदर व्हाट्स सिमिलर, इजंट इट? अब इसको थोड़ा सा अलग करके हमारा बिहार रेजिमेंट हो गया, फिर उड़ीसा रेजिमेंट है, बंगाल रेजिमेंट है। अब इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे चीजों को अलग किए गए हैं। तो इसमें हमारे जो भी कुछ हैं रेजिमेंट्स थे वो शामिल नहीं हुए। मद्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट डिड नॉट, isn't it? Now this Gurkha also, they also remained very loyal to British, इसलिए आज तक भी थोड़ी से उनका कोलैबोरेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है गुरखास लोगों का, isn't it? Guwahatis and Assamese. मैम लगभग पूरा 7 सिस्टर जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो सब गुरखा बोला जाता है। हाँ हाँ, but they do very well in this militants. In defense, they do very well. Most of them, they are very well in defense. बड़े अच्छे पुलिस और सिपाही और सैनिक बनते हैं। हमारा सिख रेजिमेंट, हमारा मराठा रेजिमेंट, हम और हमारा गुरखा रेजिमेंट जो है is very strong and powerful, you can say.
No, even the Bihar regiment also. The revolt was started by the Sipai, but the participation of the peasants and the artisans gave the revolt its real strength and reflected the Hindu-Muslim unity. Although the revolt was a great event, but it was effectively suppressed by the Britishers. Yeah, it is said that you will see the question comes that why the revolt of 1857 was known as a Sipai revolt, isn't it? Then you will write the point is also there in the topic that it was known as a Sipai revolt because it was started by the Sipais of Meerut cantonment, isn't it? And then you will write about the Mangal Pandey like this. So really it is a Sipai revolt, but the very fortunate thing is there that in this revolt many other sections also joined like peasants, farmers, common people, rulers, isn't it? So Hindu, Muslims, all they have joined this revolt and given a very nice support and strength to the revolt of 1857, and it was also reflected. The things was reflected, but मैम although it was very मैम unfortunate. हाँ बोलिए. मैम कारतूस का अर्थ क्या होता है मैम? क्योंकि मैम मैंने सर्च किया कार्ट्रिजेस का मीनिंग तो मैम कारतूस आया, तो मैम कारतूस का मतलब क्या होता है? कारतूस जो होता है गन का वो गोली। एक, हाँ, गन का गोली जो होती है ना, वो थोड़ी राइफल वाली जो गन की गोली होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और उसके ऊपर कोई चीज होता है उसको वो, क्योंकि वो जब आप उसको रखे हुए रहते हो तब वो उसको थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए उसमें कुछ ग्रीस और कुछ चीजें से वो बंद रहती है। जब आप उसको राइफल में लोड करने जाते हो देन यू हैव टू रिमूव दैट टिप, इजंट इट? एंड दैट टिप वाज कवर में होता है। हाँ, कवर में होता है। तो बिफोर पुटिंग इट इन दैट राइफल यू हैव टू रिमूव दैट कवर, इजंट इट? तो कारतूस वही होते हैं। आज क्या उसका गूगल करके दे दूंगी आज मैं यूट्यूब पे, आज मैं दे देती हूँ। फिर क्या, ये तो बड़ा अजीब लगेगा। आई विल ओनली सेंड यू द पिक, आई विल नॉट सेंड यू द होल कारतूस। ठीक है, तो इवेंचुअली यू कैन सी दैट रिवॉल्ट वाज वेरी fortunate also, but we can at the same time we can say it is very unfortunate because the revolt was very brutally suppressed by the Britishers. तो अभी आपने क्या देखा कि रिवॉल्ट कहाँ कहाँ हुए थे और किन किन सेक्शंस में हुए थे। अब आप समझ गए कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट। सिपाही से लेकर के आपको स्टार्ट होना है तो रूलर्स तक जाना है, रूलर्स के बाद में स्टार्ट होना है तो आपको पीजेंट्स, आर्टिशंस, फार्मर्स और कॉमन पीपल्स, हिंदू मुस्लिम सबके बारे में बताना है। यही हो गया कोर्स ऑफ रिवॉल्ट। नाउ टुडे यू आर गोइंग टू राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन द कोर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, टेक डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द course of the revolt of 1857. Now let's see the main centers of the revolt in the book, page number 128. See all of you, we are having the map, in political map of India, and that too you are going to do it in the political map. Can you see Delhi? First of all, Yes, we'll ma'am. talk Yes, about the ma'am. Delhi. Ma'am. It's in Yes, ma'am. center. हाँ, just after हम लोग ऊपर से आते हैं, हम लोग ऊपर से आते हैं, हम लोग ऊपर से आते हैं। दिल्ली के नीचे क्या है? मेरठ। मेरठ। ठीक है, मेरठ के बाद चलो हम लोग ध्यान लगाते हैं बरेली की तरफ। बरेली की तरफ जाएं? हाँ? तुम लोग Yes, थोड़ा सा ma'am. उसको अंडरलाइन कर दो। दिल्ली, मेरठ, बरेली, सीरियल वाइज में जाते हैं। फिर बरेली के बाद कौन आ जाता है? आगरा। हम आगरा। आगरा 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 आ जा रहा है ना, ठीक है ना। आगरा हमारा देखो तुम्हारा किससे सटे हुए है आगरा? मैम यूपी। मैम यूपी के बॉर्डर से। मुझे तो नहीं लग, यूपी के बॉर्डर से तो है मगर और भी किसी के बॉर्डर से है। मैम राजस्थान। राजस्थान। हाँ, राजस्थान। आपको पता है अगर आप एक बार दिल्ली चले जाते हैं ना, इफ यू गो टू दिल्ली इन 4 hours यू कैन गो टू राजस्थान जयपुर, in 4 hours you can go to Dehradun, in 4 hours you can come to nearby place, means Jaipur, Dehradun and nearby places you can go. Agra, Yes, how many ma'am. hours it take to go for Agra?
बहुत लोग गए होंगे वहां पर दिल्ली से आगरा. Who has gone to from Delhi to Agra? Where is our Taj Mahal? आगरा. आगरा. हाँ, तो मेरा हर्षचंद्रा तो दिल्ली चला गया था, बट फिर उसको आगरा आना पड़ा ताजमहल देखने के लिए. क्यों हर्षचंद्रा? पावनी. Yes, ma'am. यस मैम. पावनी, तुम Yes, दिल्ली ma'am. गई थी. मुझे पता चला है, you have gone to Delhi and then you came to know that na Agra is far away bit, and how many hours it take to go by bus. So you took a bus मैम for गए seeing मैम गए ताजमहल. हैं मैम. देखो, मैं थी क्या था तुम्हारे साथ में? I was not No, there. ma'am. कैसे पता चल गया मुझे? मैम नहीं पता. I know everything about you. So you went to Delhi, then you came to Agra, like this. See, then we'll talk about Gwalior. Can you tell me where Gwalior is in which state? मैम MP में, मध्य प्रदेश. 4 hours. मध्य मैम 3 to 4 प्रदेश. hours लग जाता है मैम दिल्ली से आगरा आने में. हाँ हाँ, मुझे पता है. तो वही तो मैं बोली कि या तो आप दिल्ली से ऊपर की तरफ जाओ तो देहरादून चल जाओ 4 घंटे में. मैम ये फिर मिडिल दिल्ली में से है अगर मैम, इसीलिए मैम हाँ, सबसे तो इक्वल दिल्ली से डिस्टेंस नीचे है. आ जाओ तो आगरा में आ जाओ 4 घंटे में. ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ? लखनऊ. लखनऊ और फिर बनारस. Again, it will take 4 hours to go from Banaras to Lucknow, and from Lucknow to Banaras 4 hours, and from Banaras to Patna 4 hours. Isn't it? Then Kanpur. Kanpur is there. What is there after Kanpur? Jhansi. झांसी. Where is Jhansi? In which state? मैम यूपी. मैम यूपी. UP. Yes. Yes, ma'am. Very border to UP and Madhya Pradesh. है ना?